करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। Our Honorable Rashtrapati of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan ji, distinguished guests, Bayu and Behnu, sabko namaskar. It is really gives me a great, immense pleasure to join all of you on this special occasion to release the 5 commemorative books marking 4 years of the presidency of our Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji. There is also a personal reason why this occasion is especially meaningful to me, because while serving the people of Jharkhand as the governor, I traveled extensively across the state. Wherever I went, people spoke with great warmth and admiration about Honorable Srimati Draupadi Murmuji's tenure as governor. She has served the Jharkhand in a great way for 6 continuous years. Citizens from different walks of life recalled the dignity with which Honorable President Madam discharged her constitutional responsibilities. She also established a deep personal connect with the people. They remembered her empathy and her genuine concern for the welfare of the tribal communities, the underprivileged, and the youth. Such a goodwill cannot be earned by office alone. It is earned through character, compassion, and dedication to the people, by serving the people. During the past 4 years, our Honorable President Madam has enriched the high office with grace, humility, wisdom, and commitment to the letter and spirit of the Constitution. Her remarkable life journey is extraordinary and deeply inspiring. From the modest surroundings of a remote tribal village in Odisha to the highest constitutional office of our great Mother Bharat, her rise is a testimony to the strength and the inclusiveness of our great Indian democracy. Honorable President Srimati Murmuji strengthened the connect between the Rashtrapati Bhavan and the people of Bharat. Rashtrapati Bhavan has now become Rashtraka Bhavan, a people's institution that reflects the aspirations, heritage, and the cultural soul of India. Several initiatives undertaken during her period symbolize this larger vision. I have had the privilege to witness these transformative changes over the past 4 years. Whenever I came to Rashtrapati Bhavan as a governor and now as the Vice President of India, in her very first year as President, Rashtrapati ji renamed the historic Mughal Garden as Amrit Udyan. The opening of Rashtrapati Niketan and Rashtrapati Dabhavan in Dehradun to the people reflects her commitment to bringing the institution of the presidency much, much closer to the people. Honorable President ji has also championed the cause of making Rashtrapati Bhavan more Divyang Jan friendly. That is her specialty. That I was present on the historic occasion of the replacement of the bust of Sir Edwin Lutyens with that of Bharat Ratna Chakravarti Rajagopalachari ji, the last and the only one Governor General of India in the Free India and one of the foremost architects of modern India. The change is deeply meaningful, signifying the freedom from colonial mindset as emphasized by our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji. It is therefore most appropriate
that the first of the 5 books, Rashtrapati Bhavan, Rashtraka Bhavan, captures this evolving vision of the President. The other books, Seva or Samvedana, highlights the various of services and empathy that have been hallmark of Honorable President Murmuji's public life. Sama Vesi Saga Bagida aptly reflects her presidency's conviction that India's development must be inclusive and participatory. Bharatiyada Ka Utsav celebrates the timeless values of India's civilization and remarkable diversity. Honorable President Ji has consistently highlighted India's cultural richness, local traditions, and spiritual heritages which unite us as one nation while celebrating our many identities. The release of the Constitution of India in the Sandali language, written in the Old Sikhi script by Honorable Rashtrapati Ji, was a momentous occasion. The happy emotions on the faces of the tribal dignitaries on that day is still fresh in my memory. They were filled with pride and their language, they were filled with pride that their language and culture has been recognized at the highest constitutional place of our republic. The establishment of the Paramveer Tirga in Rashtrapati Bhavan has enabled visitors to pay tribute to the courage and the sacrifice of India's bravest soldiers. In this context, I also recall Honorable President Srimati Murmuji's visit to Siachen, the world's highest battlefield. It was a profound tribute to the courage, dedication, and the supreme sacrifice of India's armed forces, whose supreme commander is our Honorable President Ji. The inauguration of Granth Kudir at Rashtrapati Bhavan is in January this year is another evidence to Honorable Rashtrapati Ji's commitment to preserving and promoting the wisdom in our manuscripts and classical texts. Today, the Granth Kudir stands as a tribute to India's intellectual legacy. The final book being released today, Amar Rashtrapati, Amar Gaurav, a collection of articles in Odia, which are a tribute to the Honorable President Madam. It reflects the immense pride of the people of Odisha in one of their most distinguished daughters. It is a proof of admiration and affection she commands across the length and breadth of Mother Bharat. The words of the Honorable CM of Odisha, Sri Mohan Charan Manjiji's summarize Honorable President's personality, and I quote from his words, "We always learn from her life that with strong willpower and hard work, the impossible can be made possible," unquote. Collectively, these 5 books chronicle an important chapter in the history of the presidency. More importantly, they preserve for the future generations the values that have defined these 4 years: constitutionality, service, compassion, inclusivity, and cultural confidence, and nation's unity. I congratulate everyone associated with this research, writing, editing, and publication of these volumes. I am confident that these volumes will inspire future generations to cherish our constitutional ideals and delegate themselves to the service of Mother Bharat. Thanking you, Jai Hind, long live Mother Bharat. Thank you, everyone. माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। देवियों एवं सज्जनों, पुस्तकें केवल इतिहास का लेखा जोखा नहीं होती, वे समय की साक्षी होती हैं। वे विचारों को संरक्षित करती हैं, मूल्यों को पीढ़ियों तक पहुंचाती हैं और एक युग की पहचान बन जाती हैं।
So, ladies and gentlemen, today we are privileged to witness the release of a remarkable collection of publications that document 4 defining years of the presidency of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, a presidency distinguished by constitutional dignity, compassion, inclusivity, and abiding commitment to the ideals of our republic. अब मैं विनम्रता पूर्वक माननीय उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूं कि वे इन पुस्तकों का लोकार्पण करें तथा उन्हें माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करें. As the books are being released, allow me to briefly introduce each publication. सबसे पहली पुस्तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र का भवन. The journey begins with the first year of the presidency from July 2022 to July 2023. ये केवल एक शीर्षक नहीं बल्कि उस विचार का सजीव रूप है जिसमें राष्ट्रपति भवन को जन जन से जोड़ने का संकल्प साकार होता दिखाई देता है. दूसरी किताब सेवा और समवेदना. The second volume chronicles the presidency from July 2023 to July 2024. ये पुस्तक अंत्योदय की उस भावना को भी अभिव्यक्त करती है जिसमें विकास की यात्रा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प बन जाती है. तीसरी किताब समावेशी सहभागिता. ये शीर्षक स्वयं उस विचार को अभिव्यक्त करता है कि राष्ट्र निर्माण तभी सार्थक होता है जब प्रत्येक नागरिक उसकी यात्रा का सहभागी बने. चौथी किताब भारतीयता का उत्सव. द फोर्थ It also portrays a constitutional responsibility, her role as the supreme commander of the armed forces. तीसरी किताब समावेशी सहभागिता. The third volume documents the presidency from July 24 to July 25. Its central theme is inclusion, accessibility, and participation. चौथी किताब भारतीयता का उत्सव. The fourth volume chronicles the period from July 2025 to July 2026. ये पुस्तक भारतीयता की उस आत्मा का उत्सव है जो हमारी परंपराओं, विरासत और राष्ट्रीय चेतना को एक सूत्र में पिरोती है. Celebrating India's timeless civilizational heritage, the volume documents initiatives that reflect the nation's cultural confidence and enduring values. और पांचवी किताब जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, अमो राष्ट्रपति, अमो गौरव, our president, our pride. Alongside these 4 volumes published by the publication division, another significant publication is being presented today. ये पुस्तक उड़ीसा की उस गौरवपूर्ण भावना का प्रतीक है जिसमें अपनी माटी की बेटी के प्रति सम्मान, स्नेह और गर्व की अनूठी अभिव्यक्ति दिखाई देती है. देवियों एवं सज्जनों, आज लोकार्पित ये पुस्तकें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी तथा राष्ट्रपति पद की गरिमा, सेवा और संवैधानिक दायित्वों की एक अमूल्य धरोहर के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगी. अब मैं अत्यंत आदर एवं विनम्रता पूर्वक भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से अनुरोध करती हूं कि वो अपने मार्गदर्शक शब्दों से हमारा उत्साहवर्धन करें. इस समारोह में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, यहाँ उपस्थित राष्ट्रपति भवन के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार. आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरी 4 वर्ष कार्यकाल की
प्रमुख गतिविधियों के 4 संकलनों की प्रथम प्रतियां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से प्राप्त करने की मुझे प्रसन्नता हुई है। इस पुस्तकों का विमोचन करने के लिए मैं आपको उपराष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन पुस्तकों पर कार्य करने वाले प्रकाशन विभाग और राष्ट्रपति भवन के सभी अधिकारियों को मैं सराहना करती हूँ। इन पुस्तकों के शीर्षक समावेशी लोकतंत्र में भारतीय आस्था की परिलक्षित करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सचित्र संकलन राष्ट्रपति भवन की परंपराओं, कार्यप्रणालियों और उनके बहुआयामी स्वरूप से पाठकों का परिचय कराएगी। ये पुस्तकें देशवासियों की अपने विरासत पर गर्व के साथ प्रगति के साथ पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, इसी में उनकी सार्थकता है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर एलिमेंट पर्सनालिटीज द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स के एक ओडिया संकलन का भी विमोचन किया गया है। देवियों और स्वजनों, जब मैंने 25 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था, तो ये मेरे लिए सम्मान से अधिक दायित्व का विषय था, क्योंकि राष्ट्रपति भवन आना मेरे सपनों से परे था। जो कभी सोचा नहीं था वो मेरे साथ हुआ। पिछले 4 वर्षों में मैंने इसी कर्तव्य भावना के साथ कार्य किया था। मैं राष्ट्रपति भवन में या विभिन्न राज्यों की यात्राओं के दौरान जो भी लोगों, विशेषकर युवाओं से मिलती हूँ, तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। मैं जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें और विकास की मुख्य धारा में भी शामिल हैं। मैं जब भी विदेश यात्रा पर जाती हूँ तो वहाँ के भारतीय समुदाय से अवश्य मिलती हूँ। मैं उनको भारत की विकास यात्रा में अधिक से अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित करती हूँ। हमारी डिफेंस फोर्सेस राष्ट्र की सुरक्षा के प्रहरी है। मुझे सैनिकों से मिलने का जो भी अवसर मिलता है, मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयास करती हूँ और उनके इस विश्वास को सुदृढ़ करती हूँ कि देश उनके साथ खड़ा है। आज ये देखकर संतोष और गर्व होता है कि हमारी बेटियां भी देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। लोकतंत्र में राष्ट्रीय संस्थाएं जनता की है, जनता द्वारा निर्मित है और जनता के लिए है। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति भवन राष्ट्र का भवन है। मैं जब गवर्नर भी थी, बीच बीच में आना पड़ता है जब यहाँ आने का राष्ट्रपति भवन, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि वो राष्ट्रपति का भवन नहीं है, ये राष्ट्र का हर उच्च स्तरीय कार्य यहाँ होता है। और गांव से लेकर के राष्ट्र तक के लोग यहाँ भिन्न भिन्न कार्यों में आते हैं। तो ये राष्ट्रपति का घर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति तो केवल कार्य संभालने के लिए कुछ दिन के लिए मेहमान है, बाकी ये तो राष्ट्र का ही घर होना चाहिए। न केवल राष्ट्रपति भवन में बल्कि मसोबरा, देहरादून और सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति संपदाओं में
अनेक सुविधाएं विकसित की गई है। अभी राष्ट्रपति भवन ने देश भर के पीवीटीजी समूह, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, ग्रामीण कलाकारों, इनोवेटर्स, उद्यमियों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का स्वागत किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं देश 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सपना देख रहा है। इसी सपनों को साकार करने के लिए या इसी सपनों को उनको भी देखने के लिए मौका मिलना चाहिए जो दूर दराज में जंगलों में रहते हैं। उनको भी महसूस होना चाहिए ये मेरे राष्ट्र है, राष्ट्र मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए सोच रहे हैं। उनको भी सोचने का, उनको भी उसी दिशा में ले जाने का के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो भी महसूस करे कि राष्ट्र के मुखिया, राष्ट्र के लोग, राष्ट्र के प्रधानमंत्री मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं और मैं भी उसी काम में मैं भी सहयोग करूं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्र की विरासत और आकांक्षाओं की झलक देखनी चाहिए। पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रपति भवन में देश की सोच और प्रगति को व्यक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एक और जहां विरासत को सम्मान देने के लिए जनजातीय दर्पण और सूत्रकला दर्पण की स्थापना की गई है। जनजातीय दर्पण इसलिए किया गया है, बहुत सारे लोग जो मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, जो इस तरह के परिस्थिति से कभी रूबरू नहीं हुए हैं कि देश कैसे है और देश कैसे में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनके बारे जानकारी का, उनके जीवन शैली को जानकारी का उनका हक होना चाहिए। इसीलिए दर्पण होना चाहिए जनजातियों का जीवन शैली। वो भी ऐसे लोग हैं भारत में जिनके लिए हम सबको, जो भी जिस पद पे रहे, उनके लिए सोचना चाहिए। देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री तो सोच रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी जानकारी होना चाहिए ऐसे जीवन शैली जीने के लोग जो अभी भी उसी जगह पे है, जो शायद इस धरती जिस दिन बनाया गया, भगवान ने बनाए थे, शायद उसी अवस्था में आज भी है। 2 कदम आगे बढ़ने के लिए उनको भी ऐसे ज्ञान होना चाहिए, ऐसे रास्ता बनना चाहिए। उस पर केवल देश के मुखिया ना सोचे, सभी लोगों को सोचना चाहिए। इसीलिए उसी दर्पण को बनाने का ये मुख्य उद्देश्य था। वही दूसरी ओर इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार कक्षों और स्किल सेंटर की भी स्थापना की गई है। गुलामी की मानसिकता को त्यागने के राष्ट्रीय प्रयास को बोल देने के लिए राष्ट्रपति भवन में राजा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रंथों कुटीर का निर्माण किया गया है। देश की रक्षा के सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करने वाले शूरवीरों को सम्मान देने के लिए परमवीर दीर्घा की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति भवन परिसर को दिव्यांगजन सुलभ बनाया गया है। दिव्यांगजन अपने आप को डिप्राइव, अपने आप को दूसरों से अलग ना समझे, इसीलिए उनको सम्मान करना, उनके लिए, उनके सहूलियत के लिए हर चीज़ें बनाना, उनको प्रोत्साहित करना राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति भवन में प्रयास किया गया है। प्रसिद्ध ओडिया संत कवि भीम भोई जी ने लिखा है, मो जीवन पछे नरक के पड़े था जगत उद्धार हो। अर्थात अपनी जीवन के हित अहित से बड़ा जगत कल्याण के कार्य करना होता है। यही सार्थक है, जिंदगी का यही सार्थक होना चाहिए। उनकी ये पंक्ति मेरे आदर्श रही है और सदैव रहेगी। मैं जो 2022
जुलाई 25 में अपना प्रथम संभाषण राष्ट्रपति पार्लियामेंट्री का सेंट्रल हॉल में देने का मौका मिला, क्योंकि छोटेपन में उनका किताबें, उनका पोएम हम पढ़ा करते थे। तो मेरे जिंदगी ये आखिर के अर्थ नहीं है। मेरे जिंदगी किसी भी हो, कोई गड्ढा में पड़े, लेकिन देश का उद्धार होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश विकास करना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश के लोग आगे बढ़ने चाहिए। जन कल्याण में निरत रहने की अपनी इसी भावना के साथ मैं आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जो भी पुस्तकें यहाँ आप लोगों के सामने यहाँ उन्मोचन किया गया है, ये केवल मेरी उपलब्धि नहीं, राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सभी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। राष्ट्रपति को सहयोग करने के लिए ये सब अधिकारी दिन रात काम करते हैं। ये केवल राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्र के मान सम्मान अभिमान को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी अधिकारी दिन रात काम करते हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।